Okay, we will start at 10:45. Okay, 10:45.
Okay, good morning, everybody. I hope that all of you have, I think 25 students are there. Okay, fine. So, majority of you have joined the lecture. Okay, so without wasting our time, let us start our lecture. First and foremost thing, I am sharing a screen with you. Uh, yes. So, is this visible to you, Umesh Kumar? Yes, sir. Okay, fine. So, ભાઈ કુંજ ખંજન આવ્યા છે? કુંજ છે? હા સર. ઓકે, સરસ. ચલો, પછી ખંજન છે? કે આમાંથી કોણ બાકી રહ્યું છે? કાચા સાહેબ વેલકમ. બીજું તો બસ લગભગ મેજોરિટી આવી ગયા છે, બરાબર? આપણા માણસો આવી ગયા છે. તો યસ. So we are talking about the bridge, particularly in case of the other structure and the construction sequence for the other structure, unit number 6. So right now we have only the academic terms for the this semester will end in the second week of the October. So that is for your reminder. Okay. आपका जो ये सेमेस्टर है उसका जो लर्निंग प्रोसेस जो है एकेडमिक टर्म एंड डेट है वो सेकंड वीक के अक्टूबर मंथ में आएगी, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन है, ठीक है? फिर कोई टेस्ट वगैरह है तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट? Okay. So we are talking about the bridge. We have seen one video of the bridge construction. So in brief, if I tell you a different bridge components, so here is the plan of a typical bridge. I can ask this in examination also. I will put a simple this figure in your examination and mention just question marks over here. Okay, what is it? Tell me. Okay, and that is I can ask for the 8 marks on also. So I will simply erase all the technical words from here and put a question marks and give the number 1, 2, 3, 4, 5. Tell me the technical words which you can see in the figure. Okay. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे ब्लैक रख दूंगा और क्वेश्चन मार्क्स पुट कर दूंगा. लेट अस से वन. वन क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है? तो ऐसे करके हम 8 मार्क्स का पूछ सकते हैं, ठीक है? 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, लाइक वाइज. So in brief, we have a different technical words for the bridge. First and foremost thing, a river. You can see this is your river. Across the river, we are constructing a bridge, and this is the upstream size. That means your river is flowing from downward direction to the upward direction. Okay, so across the width of the bridge, across the width of the river, we are constructing a bridge. So for that we require two firm ends. हमको क्या चाहिए कि दो मजबूत एंड होने चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये विंग वॉल बनाएंगे दोनों साइड. दिख रहा है आपको? तो विंग वॉल आपने बना दिया, ठीक है? और ये है रिवर बैंक है दोनों साइड. फिर विंग वॉल बनाने के बाद हम दैट इज विंग वॉल के नीचे क्या होगा, एब्यूटमेंट, ठीक है? तो दोनों एब्यूटमेंट और विंग वॉल्स बनाने के बाद हम पियर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे. ब्रिज के दोनों एंड पे जो है, जहां पे ब्रिज स्टार्ट होता है और एंड होता है, उसको हम एब्यूटमेंट कहते हैं. एब्यूटमेंट की साइज हमेशा पियर से ज्यादा होती है. ओके, बिकॉज एब्यूटमेंट हैज टू कैरी द मोर लोड एज कंपेयर टू द piers. Okay, so in between that, all the pillars, all the columns are called as a pier. Okay, so for the pier construction we require the pile foundation. We have also seen that video also. So we, after that construction of the abutment and the wing wall, we will construct a piers. Okay, and finally we will construct
approach and carriageway. So carriageway is your road. Okay, so that is the plan. What we can see in the section, you can see this is the river. So in the river, at the both end side, you can see this left corner, left hand side, extreme left and extreme right. We have abutment. You can see abutment is there. Okay, so at the extreme right corner, we have abutment. So this is required. These things will constructed first. Then once again, we have a abutment at the starting of the bridge. This is the profile of the cross section of a river. Okay, you can see. Okay, so this is the cross section. So we are constructing this abutment. On it, we are putting a bearings. You can see everywhere. Okay. Then how much height we require for the abutments and the piers? In between, we are constructing a piers. How much heights we require to carry the load to carry the load sufficiently and safely. Okay, so this height, I'm mentioning it, this height of the pier. Okay, this is the H. I'm removing so you can get the idea. I will simply copy this and I'm going to the whiteboard just here. Okay, now simple. The height which I am mentioning in the figure, is this visible to you? Okay. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. Okay. So how we can decide a height of a particular abutment or pier? कि आपका ब्रिज का लेवल कितना ऊपर होना चाहिए, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है HFL. तो आपको उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपको हवामान विभाग के पास जाना होगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, MDI. उसके पास जाकर, उसकी वेबसाइट पे जाकर आपको पिछले 50 साल का फ्लड का डेटा निकालना है कि इस एरिया में फ्लड कितनी बार आया था. हमने डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ा है. ओके, फ्लड. तो फ्लड जो है, बाढ़ जो आती है, तो उस बाढ़ जो आई थी वो कितनी बार आई थी, उसमें से सबसे हाईएस्ट वाली, सबसे फ्रोस्ट सिचुएशन कब हुई थी, वो आपको फाइंड करनी है. और वो उसके बाद हमने RL पढ़ा था सर्वेइंग में, रिड्यूस लेवल. उसके बेसिस पे वो फ्लड का मैक्सिमम RL आपको निकालना है. उस RL के ऊपर आपको हाइट रखनी है इतनी. राइट, आर यू गेटिंग दिट और नॉट? सो HFL की वैल्यू मान लीजिए, अगर हाईएस्ट फ्लड लेवल की जो वैल्यू है, सपोज मान लेते हैं 120 मीटर. लेट अस से राजकोट का कितना है रिड्यूस लेवल, मीन सी लेवल? I think 129 point something है. Let us say 129.3 is the reduced level of the राजकोट सिटी. अब ये आपको पता है ना राजकोट का रिड्यूस लेवल कैसे मेजर करता है, मैंने आपको समझाया था सर्वेइंग में कि न्यू बॉम्बे हाई पे 00 है. अब वर्टिकल पेन में चले तो राजकोट का रेलवे स्टेशन जो है वो न्यू बॉम्बे हाई का रेलवे स्टेशन से कितना ऊपर है? 129.3 मीटर सपोज. ओके, और आपका हाईएस्ट फ्लड का लेवल है डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा. मैं कंसीडर करता हूं 131 मीटर लेटस से. ठीक है, न्यू बॉम्बे हाई से बात कर रहे हैं. ठीक है, हम सरदार सरोवर की डैम की बात नहीं कर रहे. 132 लेटस से. ओके, हम क्या बात कर रहे हैं कि ये हमारा रिड्यूस लेवल है. ठीक है, तो ये किलोमीटर तक जा सकता है. ऐसा नहीं कि सर 132 मीटर तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया. इट इज नॉट लाइक दैट. वी आर मेजरिंग फ्रॉम द न्यू बॉम्बे हाई. ठीक है, न्यू बॉम्बे हाई का जो 00 है उसके लेवल 132 है. सपोज आपका 132 HFL है, हाईएस्ट फ्लड लेवल. तब आपको फ्री बोर्ड रखना होता है. यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्री बोर्ड. तो वो फ्री बोर्ड आपको रखना है. उसके अलावा अपन नीचे थोड़ा गैप रखना है ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने में ना, तो बॉटम ऑफ द ब्रिज. तो कुल मिला के ये जो हाइट है आपकी, मैं अप्रोक्सीमेट आपको बताता हूँ कि फ्री बोर्ड जो होता है वो 2 to 3 मीटर होता है. यू कैन से द 2 to 3 मीटर. ओके, और इन सम ऑफ द केस इट कैन बी 1 मीटर आल्सो. ओके, व्हेन द chances of flood are very less. So let us say 1 to 2 and 1 meter for additional. Okay, so you need to simply provide 3 meter
gap. So I will put +3 over here. And what is the bottom reduced level of the bridge is 135. Okay. So in brief, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मेंशन अच्छे से लिख के बताऊं कि अगर आपका रिड्यूस लेवल ऑफ राजकोट 129.3 है मीटर है, फिर आपका HFL अपने डिपार्टमेंट में जाके डिटेल निकाले तो आपको मिला कि ये 132 मीटर है सर। ओके, तब आपको बॉटम ऑफ द ब्रिज की हाइट कितनी रखनी है, +3 कर दो। दिस इज नॉर्मल फिनोमिना, ऐसा जरूरी नहीं कि सर ने बोला था 3 तो 3 रखना है, आपको सारी चीजें चेक करनी होती है। तो दिस इज फॉर योर ब्रीफ आइडिया। तो मैं बॉटम लेवल I will simple mention it 135. For the safety, I will add 1.5 more. Okay, because फ्लड के बारे में, बाढ़ के बारे में हम चांस नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया. So I will simply add 1.5 more as a factor of safety, and I will put a 136.5. Once again, I will convert this 137. So ultimately, what we are doing is we need to keep it 137 meters. This is for your kind information. Okay. So now let us go back to the main point. Here the technical words are, you can see in the figure is section is abutments which are constructed at the starting and ending of the bridge. Then we have a river bed. Okay. So you need to go for the hard strata. If it is not, you can drive a piles, okay, and construct abutment on it, okay, as per the video. Then we are putting the bearings. We need to take care about the freeboards. Freeboard is nothing but a height. Okay, so unit of the freeboard will be in the length, meter, centimeter, or foot. Okay. Then we have a pier cap. You can see. After that, we have got the level surface on which we are adding the bridge girder. On bridge girder, we are providing an approach. Approach is nothing but that is your road surface. We are providing the railings and bridge floor or superstructure. So these are the things you keep in mind during the construction of the bridge. Okay. Another component of the abutment. This is the component. इसका अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ये वाला abutment वाला पोर्शन, राइट, ये वाला पोर्शन मैंने जूम करके बाहर निकाल लिया अलग स्लाइड में, तो आपको ये मिलेगा. सो दिस इज हाइट यू नीड टू कीप इन माइंड बाय highest flood level HFL. As I mentioned, 1 to 2 meter, 1 to 1.5 meter. Okay. Then we are putting all the things. Okay. Foundation is also there. Okay. So this is the component of the abutment. Simple one. So you need to remember all the figures. Okay. Try to understand the word, and after that you can easily draw by your understanding. आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन ब्रिज जैसा लगना चाहिए. ठीक है. So that is the case. अगर हम पियर की बात करें, मैंने क्या कहा, पहले आपको ये वाला पोर्शन कट करके दिखाया, अब मैं ये वाला पोर्शन जो बाहर खींच लूं पियर वाला, राइट, इसको मैंने अलग स्लाइड में ले लिया, तो वो कैसे होगा, इज लाइक दिस. ठीक है. तो वहां पे अपस्ट्रीम साइड से, अपस्ट्रीम साइड यानी कि नदी का जो बहाव है वो इस तरफ जाएगा, यहाँ से होके इस तरह से जाएगी. ठीक है. तो जहां से आती है उसको अपस्ट्रीम साइड बोलेंगे यूएस, जहां जाती है उसको डाउन स्ट्रीम साइड, बिकॉज वाटर इज फ्लो फ्रॉम द अप टू डाउन. ओके. सो दैट इज फॉर अप एंड डाउन. और इस तरह से वेव्स यहाँ पे टकराती रहेगी. ठीक है. यहाँ पे पियर पे इस तरह से, वो भी हाइट आपको मेजर करनी है. उसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ एफ्लेक्स. एफ्लेक्स इज नथिंग बट दैट इज योर वेव्स. ओके. तो ये हाइट आपको मेजर करनी है, कहीं ये वाटर आपके ब्रिज पे ऊपर ना आ जाए, है ना. So that is the point. So this is the components of the piers. Parapet wall is there, roadway and parapet. Okay. Any doubt in this? कोई डाउट है इसमें? समझाणु भाई, राजकुमार वैष्णव समझाणु.
ના સર, થોડું થોડું સમજાણ. આ બ્રિજના કમ્પોનેન્ટ ખ્યાલ આવ્યો? શું છે આ? શું છે? તમે પેલા કેવું મને સર? બ્રિજના હા, આ જે ફિગર બતાવું છું એ હા, આમાં તમને ક્યાંય પુલ જેવું દેખાય છે? મને પેલા એ કહો, આમાં પુલ કયો છે આપણે પુલ આપણે રેલવેમાં? હા, પુલ. આમાં પુલ પુલ આ કયો સર છે? ઉપર. હે, આ ઉપર હે ને સર, એ પુલ પુલ કહેવાય. હા, આ પુલ છે, આના ઉપર વાહનો જતા હોય, બરોબર? ધીસ ઇઝ ધ પુલ. હા આ હા, પુલની નીચેનો ભાગ શું છે? એ આ સર ગર્ડર્સ ઓલું છે. શું સર? ગર્ડર્સ. ગર્ડર્સ. હા, પછી આ હા શું છે? આપણે કોન્ક્રીટનો પિલર બનાવવો પડે કે નહીં? બ્રિજ કોની ઉપર ઉભો રહેશે? હા, એને સપોર્ટ માટે સર બનાવવો પડે, એ ટેકે રે હા, એટલે. આ ના ખબર પડી? આ ના ખબર પડી? ના, આ શું છે સર, એ કઈ ખબર નહીં પડી. હા, જો આ શું છે? આ તમારું રેલવે ક્રોसिंग છે। आप हाँ आप जब आप रेलवे में बैठे हो तब बीच में पुल आता है सपोर्ट, ठीक है? तो ये वही पुल है। उसमें क्या है कि आपकी ये रेलिंग हो गई, ठीक है? हाँ हाँ आपके यहाँ पे रेल के लिए जो पटरी है वो बिछा दी आपने, ठीक है? हाँ हाँ, राइट। उसके यस नीचे यस। क्या होगा? आपको ये कुछ फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। हाँ उसके नीचे आपने बेरिंग्स बनाए ताकि जो कुछ भी वाइब्रेशंस हो वो ये हाँ, बेरिंग्स हैंडल कर ले, ठीक है? बेरिंग्स लगाए। उसके नीचे ओके। आपने एब्यूटमेंट बनाया। एब्यूटमेंट क्या है? इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द ब्रिज। उसके ओके। दोनों साइड के बीच में, बीच वाले जो पियर्स होते हैं, उस जो कॉलम्स होते हैं उसको पियर्स कहते हैं। तो हमने क्या किया? सिंपल, चार अलग अलग पेन ली हम्म। है। मैं आपको कैसे दिखाऊं? एक ब्रिज आप कैसे बनाते हो कि जब आप छोटे थे तब आप ब्रिज कैसे बनाते हो, वैसे ही ये ब्रिज है कि नहीं? हाँ अब मैं हाँ आपको वापस से समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए, म्यूट कर दे, वांधो नहीं राज। तो સૌથી પહેલા તમારે आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ग्राउंड सरफेस चाहिए। तो दिस इज माय ग्राउंड लेवल, ओके। फिर मैं क्या करूंगा? ये मैं आपको इसलिए बार बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्या कि आपका ग्रास्पिंग पावर थोड़ा आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। मैंने जो इतनी बार बताया, आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, आपको ये समझ में आना चाहिए। लेकिन आप अपने मतलब, है ना, क्या कहते हैं उसको, लगे रहते हो कि सर हम, आप कुछ भी कर लो, हम तो समझेंगे ही नहीं, है ना? तो दैट इज द केस। अब हम क्या करेंगे? इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? हमें ब्रिज बनाना है, राइट? तो हमें पहले कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, पहला ब्रिज का स्टार्टिंग बना लेता हूँ इस तरह से। हमने लेवल डिसाइड कर लिया कि ब्रिज इतनी हाइट पे रहेगा, ठीक है? एक, और ये हमारा इतना स्टार्टिंग, और इसके बीच में हमें ब्रिज बनाना है, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा कि कुछ रेगुलर इंटरवल पे हमें कॉलम्स बनानी पड़ेगी इस तरफ, इसके जैसी, है कि नहीं? इतना सिंपल है आपको, ठीक है? समझना होगा, आपको इंप्रूव करना होगा अपना ग्रास्पिंग पावर, राइट? तो जो लास्ट वाले जो कॉलम्स है उसको हम क्या बोलेंगे? एब्यूटमेंट बोलेंगे। ये हमारा एब्यूटमेंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग एब्यूटमेंट है, ठीक है? उसके ऊपर हम ये ब्रिज बनाएंगे। ब्रिज हमें क्यों बना रहे हैं? ताकि हमें इस तरह से स्लोप प्रोवाइड करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका ब्रिज बन गया। ब्रिज हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ नीचे से नहीं जा सकते भाई, क्योंकि यहाँ तो क्या है, यहाँ तो रिवर है कुछ, है ना? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये रोड जो है इतना एलिवेट करके वहां से उसको हम कूदा के ऐसे लेके जाएंगे, है ना? रिवर फांदनी पड़ेगी, ऐसा कहते हैं ना हिंदी वाले। तो
यस सर। ये है मेन कॉन्सेप्ट ब्रिज का, ये है। तो आपको यहाँ पे ब्रिज नहीं दिख रहा है तो दैट इज योर प्रॉब्लम जेंटलमैन। ओके, तो आपको ये सुधारना पड़ेगा, अपनी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ाओ, अपना ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा बढ़ाओ। अगर आपको क्रॉस सेक्शन नहीं मालूम है तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में वापस से बैठ जाओ, ठीक है, तभी आपको ये अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, है कि नहीं। तो मैंने जो 4 कॉलम बनाए वो आपके सामने है। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे 1 2 3 और 4 हमने बना दिया। उसके ऊपर हमने बेरिंग्स लगा दिए, उसके ऊपर हमने फ्रेम बनाए, उसके ऊपर हमने रोड बना दिया, सिंपल। तो ये है ब्रिज का पूरा कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में। तो मैं थोड़ा बहुत आपको एक ब्रिज वाली पीपीटी दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। गिव मी 1 minute, आई एम शोइंग ए पीपीटी फॉर ब्रिज। I'm going out of track because you are not understanding what I'm trying to convey you. Okay, so that's why I'm PPT. I'm showing the PPT of the first semester of the degree. Okay, so that will help you a lot. So I'm sharing a screen with you. I hope that you are getting that screen. Okay, right now I'm. This is the bridge. You can say, is this visible? This is the plain PPT. So I will just go briefly, very briefly. Okay. सो बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द ब्रिज, आपको पोल पता ही नहीं है तो मैं आपको क्या समझाऊं, है ना। तो दैट इज द पॉइंट। सो लेट अस गो बैक ब्रिज। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ। यस, सो ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर विच कवर्स द गैप। अगर कहीं पे भी गैप है, आपको उस पार जाना है, तब आप ब्रिज बनाएंगे। जनरली ब्रिज कैरी ए रोड, रोड का ब्रिज होता है, रेलवे का ब्रिज होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल, कहीं पे भी मान लीजिए आपको जहाँ जाना है वहां पे रिवर आ गई, उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तब आप क्या करेंगे, ब्रिज बनाएंगे। केनाल आ गई है, रेलवे आ गया, रेलवे रोड क्रॉसिंग है, तब आप ब्रिज बनाएंगे। और कभी कभार हम सिटी में भी, राजकोट में भी आपने देखा होगा, अगर अदर मेगा सिटी में भी आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर बनते हैं। तो फ्लाईओवर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि नीचे जाने की जगह नहीं है, तो हम एक और लेयर बना देते हैं ब्रिज का, उसको हम ब्रिज कहते हैं। दिस इज योर फ्लाईओवर ब्रिज, क्योंकि आप वो ट्रैफिक के ऊपर से उड़ के जाते हो, दैट इज योर फ्लाई ओवर ब्रिज। ओके, सो दैट इज द फ्लाईओवर। व्हाट इज द की एलिमेंट, दिस इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ब्रिज हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें किसी का सामान, हमारा सामान, ठीक है, या फिर पैसेंजर की मूवमेंट इस तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्रिज जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का एक भाग है, राइट। एंड आप देख सकते हो, समटाइम्स ब्रिज विद द ब्यूटी इज वेरी इफेक्टिव फॉर अस। ओके, सो ब्रिज बनाते हैं तो क्यों ना हम अच्छा ही ब्रिज बनाए, कुछ टूरिस्ट प्लेस वाला बन जाए, ठीक है। तो ये हमें ट्राई करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ब्रिज विद द ब्यूटी। ओके, then you can see that this is the main cross section once again। यही आपको समझना पड़ेगा, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। तो फाउंडेशन जो है वो सब स्ट्रक्चर है, पियर जो भी है वो भी सब स्ट्रक्चर है, अबेटमेंट जो भी है वो भी सब स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो भी है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर है। ओके, आप देख सकते हैं ब्रिज हम कहाँ कहाँ बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें रोड तो था ही नीचे, ठीक है, लेकिन हमें रोड को क्रॉस करवाना था, रेलवे को, है ना, या फिर अनदर रोड। हम दो रोड क्रॉस करवाना चाहते हैं, एक मान लीजिए ये नेशनल हाईवे है या एक्सप्रेस हाईवे है, तब आप जो नॉर्मल रोड है उसको आपको उसको क्रॉस करवा के ऊपर से लेके जाना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए रोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्यूटमेंट है, बोथ हैंड, और यहाँ पे कोई पियर नहीं है, क्योंकि दिस इज द स्पान विच कैन इजिली सेफ एंड विथस्टैंड द लोड। ओके, तो हमें यहाँ पे कोई पियर नहीं दिया, क्योंकि हम पियर देंगे तो रोड वाले जाएंगे कहाँ से। ओके, देन यू कैन सी द अनदर इमेज हियर। Here you can easily understand, you can see the piers are there.
ओके, 8 इन द सिंगल लाइन ऑल्सो। अब केप बीम, हमने उसके ऊपर केप लगा दी, उसके ऊपर हमने सुपर स्ट्रक्चर बना दिया। सो दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ओके, and yes, a bridge classification is there. We can classify the bridge according to the length, short span। अगर आपका ब्रिज की लेंथ 6 मीटर से 30 मीटर तक के है, उसको हम शॉर्ट स्पान ब्रिज बोलेंगे। अगर आपकी ब्रिज की स्पान 30 टू 100 मीटर है तो वो मीडियम स्पान होगा, और 100 मीटर से ज्यादा की जो भी लेंथ है ब्रिज की, उसको हम लॉन्ग स्पान बोलेंगे। जो भी ब्रिज, जो भी स्ट्रक्चर का स्पान 6 मीटर से ज्यादा है उसको हम ब्रिज बोलेंगे, और 6 मीटर से कम है उसको हम कलवर्ट बोलेंगे। कलवर्ट यानी कि छोटा छोटा जो है बॉक्स लाइक जो है स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। देन मटेरियल के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टील का ब्रिज हो गया, कंक्रीट का ब्रिज हो गया, टिम्बर का ब्रिज हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जंगल जहाँ पे है, ठीक है, वहीं पे कंक्रीट नहीं इजीली मिलता, तो वहां पे हम टिम्बर का ब्रिज बनाएंगे। हाइब्रिड मिक्सअप ऑफ ऑल द थिंग्स, स्टोन का ब्रिज बनाएंगे, ब्रिक का बीन बनाएंगे, ठीक है। एफआरपी, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक यूज करके भी हम ब्रिज बना सकते हैं। सो दिस इज द ब्रिज टाइप बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज के ऊपर से ब्रिज हम कहाँ यूज करने वाले हैं। सो पेडेस्ट्रियन, हम जो फुटपाथ जो है वो, फुटपाथ पे जो चलते हैं राहदारी है, तो वो राहदारी के लिए भी हम पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना सकते हैं। हाईवे रोड रेल क्रॉसिंग, ओके। देन अकॉर्डिंग टू द स्पान, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग, एज आई मेंशन अर्लियर। स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्लैब के हिसाब से गर्डर प्लेस करके, ट्रस, आर्च, सस्पेंशन, केबल वाला ब्रिज, ठीक है, वो हम अकॉर्डिंग टू द कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ ब्रिज है, हम आप एग्जांपल देख लेते हैं। अब ब्रिस्टल ब्रिज, ब्रिस्टल यूके, तो आप देख सकते हैं ब्रिज। यूएसए का ब्रिज है, ठीक है, यूके का ब्रिज है ये। दिस इज द केबल स्ट्रे, ओके। देन यू कैन सी द इलेक्ट्रिक वाल्व फुट ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। लंदन मिलेनियम फुट ब्रिज आप देख सकते हैं। दिस इज द पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ओके, जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं होते, ठीक है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। दिस इज द कलवर्ट, यू कैन सी द कलवर्ट, द स्पान इज वेरी लेस, 6 मीटर, लेस देन 6, okay, okay. Then you can see the arch bridge are there, okay. Okay, then you can see arch bridge। अब लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म उसके लिए समझना होगा। मोस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आप मान लीजिए डिग्री भी करने वाले हैं, या फिर आगे सेमेस्टर 3, 4, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में जो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस का टॉपिक हुआ, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो सभी जगह आता है, ठीक है, कोई भी ब्रांच में जाओ। तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, लोड कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, और यहाँ पे हमें मजबूत फिक्स एंड चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द केस। आप देख सकते हैं बीम ब्रिज गर्डर, सिंपल, यही फंडामेंटल है। सिंपली सपोर्टेड बीम आपने बना दिया, ये हमारा पियर हो गया दोनों साइड, और दिस इज द रोडवे, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। सो दैट इज द केस। लोड कैसे ट्रांसफर होता है, कंप्रेशन कहाँ होता है, टेंशन कहाँ होता है, ये भी आपको समझना होगा, सो दैट आई कैन आस्क इन द exam also, okay, in MCQ short questions, okay. So you can see we have the simply supported bridge are there, cantilever bridge are there, overhanging continuous bridge are there, okay, right. So this is the cantilever beam, you can see truss beam, देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको ब्रिज समझना है तो इसके लिए आपके माइंड में कुछ इमेज होनी चाहिए, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस पीपीटी। सस्पेंशन ब्रिज आप देख सकते हो, सस्पेंशन ब्रिज, ओके। लंदन टावर्स आर देयर, आई होप दैट यू आर, इट इज आई थिंक 1894,
હોઈ શકે, હા, ખોટું પણ હોઈ શકે, સાચું. જસ્ટ વેરીફાઈ ધેટ 1884. સો સસ્પેન્શન ब्रिज यू कैन सी द वी आर આપણે पियर ने ऊपर સુધી લઈ જઈએ भाई. हम क्या करते हैं नॉर्मल ब्रिज में पियर तो यहाँ पे खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसको और ऊपर खींच के लेके गए दोनों पियर को, अबेंडमेंट तो वैसे ही है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, वो हम सस्पेंशन ब्रिज, उसको हम ब्रिज को हम झूलता ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है. तो दैट इज ब्रिज केबल स्टे और सस्पेंशन ब्रिज सूरत में કુંજ ભાઈ, બરોબર ને? સાચું ખોટું? સાચું છે. સાચું ને? तो ब्रिज જે છે આ पियर જે છે એને ऊपर खींची लो, ऊपर और तक लेके तक जाओ. उसके बाद उसको पाइलोन भी बोलते हैं, ठीक है, टावर और पाइलोन, PYLON. पियर जब ऊपर चला जाता है उसको हम पाइलोन बोल देते हैं, ठीक है. अब ये क्यों बोलते हैं उसके लिए हमें इसके इंजीनियर्स को ढूंढना पड़ेगा, है ना. पाइलोन, पियर ऊपर जाके पाइलोन कैसे हो गया, राइट. तो केबल लगा देते हैं इस तरह से. फिर लोड ट्रांसफर आप देख लीजिए, नीचे की तरफ लोड जाएगा, ओके, राइट. and meanwhile tension force will be generated in the cable, okay. So that's why we are providing the tension cable stay bridge, suspension bridge. हम इस तरह से भी केबल लगा सकते हैं, राइट, ओके, ट्रायंगल फॉर्म में, ठीक है. आपको ये ध्यान रखना है कि ये केबल टूट ना जाए, है ना. टूटेगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन नीचे गिर जाएगा. और दिस इज द ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, सिंपल. आपको ये ध्यान रखना होता है कि व्हाट आर द फंक्शन. आपको ब्रिज जो है वो रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग वाला, या फिर उसको पूरा डिमोलिश करके नया बनाना है. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इस ब्रिज का उपयोग कौन करने वाला है, ट्रैफिक कितना रहेगा, वेयर इज द बेस्ट स्पॉट. आपको ब्रिज का लोकेशन फिक्स करना पड़ेगा, जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है वहीं पे आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, नीचे के लेवल पे और ऊपर के लेवल. फ्यूचर में 5 साल या 10 साल बाद वो ब्रिज खाली नहीं रहना चाहिए, वरना क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सारा मतलब खोट में चला जाएगा, है ना. मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है वो आपको रिटर्न मिलेगा नहीं उतना, राइट. प्रोजेक्ट फंडिंग, फंड कहाँ से आएगा प्रोजेक्ट का, प्लान क्या रहेगा, एस्टिमेट क्या रहेगा, डिजाइन कैसे करेगा, वो सारी चीजें आपको देखनी होती है, राइट. एंड एक और चीज जो है वो हम डिस्कस करना शायद रह गया. यस, ये वाला चीज, लोकेशन प्लान करने के लिए, ब्रिज प्लानिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ट्रैफिक स्टडी करना पड़ेगा, राइट. देन हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं पूछने वाला हूँ एग्जाम में, राइट. अगर आपको ब्रिज बनाना है तो आप कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे, ट्रैफिक स्टडी, आपको एग्जिस्टिंग ट्रैफिक क्या है, 15 साल बाद कौन सा ट्रैफिक रहेगा वो आपको ध्यान रखना होगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी. उसके बाद बाढ़ का ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लड. मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ब्रिज का, ठीक है, सूरत वाले में खास प्रॉब्लम है. सूरत जो हर 6 या 7 साल में एक बाढ़ आ जाती है, तो उसको हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज करनी पड़ेगी कि पिछला वाला कितना था फ्लड का लेवल, और सबसे खराब परिस्थिति कब हुई थी हमारी, उसके बेसिस पे स्टडी करके हमें ब्रिज की प्लानिंग करनी चाहिए. सोइल स्ट्रेटा, आप जो पाइल फाउंडेशन करते हो जियो टेक्निकल स्टडीज आपको करनी पड़ेगी कि वहाँ की जमीन जो है, आपका ब्रिज का लोकेशन हाइड्रो टेक्निकल स्टडीज और ट्रैफिक स्टडीज के बेस पे आपने फिक्स कर दिया, लेकिन वहाँ की सोइल अगर उसकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी कम है तो आपको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा. एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पॉल्यूशन कम हो. और द अल्टरनेटिव फॉर द ब्रिज टाइप, आपको ब्रिज टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ब्रिज, सिंपली सपोर्टेड बनाओ, कैंटिलीवर बनाओ, या फिर कौन सा ब्रिज बनाओ. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, हाँ, कि आपने सपोज मान लिए 25 या 30 करोड़ का ब्रिज बना दिया छोटा वाला, तो आप क्या करेंगे कि ये 30 करोड़ कब वापस आएगा, वापस से टोल टैक्स लगा के, हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऐसा है कि आपने 100 करोड़ का ब्रिज बना दिया, है ना, तो 100 करोड़ रिकवर करते करते आपको 50 साल लग जाते हैं, तो दैट इज योर नॉट इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ठीक है. एंड मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा ब्रिज की कॉस्टिंग जो होती है मेरे अनुभव के हिसाब से,
वो पाकिस्तान में जो ब्रिज बनता है उसकी कॉस्टिंग सबसे ज्यादा होती है। हमने आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जितना खर्चे में हमने अ, हमारा जो ये चंद्रयान 2 भेजा ना हमने अभी, चंद्रयान 2 का जितना खर्चा हुआ टोटल ना, यहाँ से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जितना खर्चा हुआ उतने खर्चे में पाकिस्तान एक ब्रिज बनाता है। सो दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट, आप ये नेट पे चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से चांद तक पहुंचा दिया ऑटो रिक्शा के भाड़े में, ठीक है, चांद तक पहुंचा दिया चंद्रयान। और उतना ऑटो रिक्शा के भाड़े में जो टोटल हमारा कॉस्ट है, उतने कॉस्ट में पाकिस्तान में एक फ्लाईओवर ब्रिज बनता है। सो दैट इज ऑल्सो ए केस, वहाँ पे एक आर्टिकल भी आया था। ओके, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, आप वो पढ़िए, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड ब्रिज सिलेक्शन एंड डिटेल डिजाइन। डिटेल डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड, बिकॉज क्या होता है कि नया स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होता है, जैसे कि आप स्टडी करके सीधे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी में जुड़ गए, तब आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ब्रिज का प्लानिंग अगर आप हाथ में लेते हो, तो आई सजेस्ट यू 10 लोगों को आप मिलो, उसका एनालिसिस 10 बार करो और फिर आप ग्राउंड पे जाके इम्प्लीमेंट करवाओ। क्योंकि क्या होता है कि आई होप सूरत में ही ऐसा हुआ था कि सपोज अदालत अदालत लगभग अदालत છે ને ભાઈ સુરતમાં કુંજ જતો રહ્યો છે સાહેબ, હું તો છું છે જ ને? અદાલત. હા, તો ત્યાં जो કંઈક प्रश्न થયો હતો કે ભાई कर्वेचर ने एक ब्रिज जो बनाया, उसका स्ट्रक्चर इंजीनियर था, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन ठीक है, तो 2 साल के एक्सपीरियंस वाले ने ब्रिज डिजाइन किया, उसने क्या गलती कर दी कि कर्वेचर का स्पान था सपोज 80 मीटर, लाइक 80 मीटर स्पान था, और बीच में कहीं पे पियर ही नहीं दिया। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो मान लीजिए ये आपको मैंने फिगर बनाया है ना, तो सपोज दिस इज योर ग्राउंड लेवल राइट नाउ, ओके। तो उन्होंने भैया ने क्या किया कि अगर मैं इसको प्लान में बना दूं, ठीक है, ये गलती कहाँ होती मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी वो गलती की सजा किसको मिलती है वो भी मैं आपको बताऊं। सपोज ये आप यहाँ से चले, ठीक है, ये आपका ब्रिज है, यहाँ दिस इज चले, और ये सूरत अर्बन एरिया की बात है, ठीक है, और इस तरह से आपका कर्वेचर था, और इस तरफ आप चले गए सीधे, है ना, ये आपकी मूवमेंट है ब्रिज की। तो ये वाले पोर्शन में अगर इसको खींच के थोड़ा बाहर लेके आऊं, तो मान लीजिए ये हमारा कर्वेचर है, राइट, ब्रिज का। तब आपको आसानी से पता चलता है, ठीक है, दिस इज योर कर्वेचर सपोज, ओके। तो ये इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था इस तरह से, यहाँ पे एक पियर होना चाहिए था, ओके, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे एक पियर होना चाहिए था, है ना, पाइल फाउंडेशन, यहाँ पे एक पियर होना चाहिए था, यहाँ पे भी होना चाहिए था, यहाँ पे, और रेगुलर इंटरवल पे पियर आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों पियर्स दिए ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर में टोर्सन मूवमेंट जो थे वो ऐड करना भूल गया सॉफ्टवेयर में। तो ब्रिज डिजाइन आई, वो कैसी आई कि ये वाले जो पियर्स थे वो एक्चुअल फील्ड में आए ही नहीं कर्वेचर पे, क्योंकि यहाँ पे टोर्सन मूवमेंट लगता है। तो क्या हुआ, सिंपल, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, और इतना पोर्शन जो है वो गिर गया, और उसके नीचे जो है सारे जो काम करने वाले थे 50 लोग, वो भी डेथ हो गई उसकी, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, उसके साथ साथ जो भी जो लाइसेंस कैंसिल हुआ उन सभी का, जिन लोगों ने साइन किया था, है ना, एक तो स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्चर, साइट इंजीनियर, ओके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, वो सभी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, और उसका मतलब केस जो है वो एक कोर्ट में चल रहा है सपोज, है ना। तो कोर्ट जब तक निर्णय देगा तब तक तो इसके इसमें से एक आध दो की मौत भी हो जाएगी, है ना। सो दैट इज द केस। तो आप अगर एक एज इंजीनियर आप गलती करते हो, तो उसका जो भुगतान है वो नीचे का लेवल का जो आदमी उसको करना पड़ता है, ओके।
सो दैट इज माय पॉइंट. सो नेवर मेक ए मिस्टेक ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग. इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि भाई लेक्चर अटेंड करो ना करो उसका तो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके अलावा जो भी आपको रियल वर्ल्ड का नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए. राइट? ये आपको समझ में आई बात है कि नहीं? हाँ सर. केविन, यस सर. यस. ठीक है. इसीलिए हाँ, हमें क्या है कि क्वालिटी इंजीनियर चाहिए, ऐसे वाले इंजीनियर नहीं चाहिए ना. तो दैट्स व्हाई वी आर एम्फेसिंग ऑन द लर्निंग. हर एक लेक्चर में से मैं अगर आपको पूछूं कि आपने क्या सीखा, तब आपके पास कुछ आंसर ही नहीं होता, मेजोरिटी. हाँ, अब राजकुमार को मैंने पूछ लिया कि भाई आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं सर, उसको सेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है. ये हर एक इंजीनियर की बात है ना. आपके क्लास की नहीं, यहाँ पे गुजरात में कहीं भी चले जाओ, ये सबका यही है कि उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, है ना. ब्रिज का पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ. तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ब्रिज का आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपके वजह से किसी 50 लोगों की जान ना चली जाए. सो दैट इज द केस, है ना. सो दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग, कि हर एक चीज को आपको इस तरह से लर्न करनी होती है कि कुछ रियल वर्ल्ड में आपकी वजह से नुकसान ना हो. उसके बाद की लाइफ में आपको बताता हूँ. इट इज लाइक ए बॉलीवुड स्टोरी. आपको एक स्टोरी की तरह आपको लगेगी कि आपकी वजह से 100 लोगों की जान चली गई, है ना. फिर आपके अंदर एक खुद ही आप अंदर अंदर जो है वो आप क्या बोलते हैं उसको, घुटन होती रहेगी, और आप खुद भी आपकी भी डेथ हो जाएगी, या फिर आप खुद अपने को गोली मार दोगे, या फिर आप खुद भी सुसाइड कर लोगे. ऐसा होता है क्योंकि आपकी वजह से 100 लोगों की जान गई है. तो उसके लिए आपको कोर्ट तो सजा करेगा ही, लेकिन उसके अलावा आप खुद ही नहीं जी पाओगे, है ना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. दैट इज योर साइकोलॉजिकल प्रेशर. सो एंग्जाइटी बोलते हैं उसको, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो हमारे यहाँ क्या होता है कि इंडिया में कल्चर ऐसा है कि हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, है ना. लेकिन एक अकेलेपन भी एक ऐसी बीमारी होती है. सो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट दैट विल लीड टू दैट. ठीक है. फॉरेन में क्या होता है कि उसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, उसके पास माँ नहीं है, फैमिली नहीं है ना. सो दैट इज द केस. तो अकेलेपन से लोग मर जाते हैं. और यहाँ पे तो 6x6 की या फिर छोटा सा घर, उसमें 12 लोग रह लेते हैं आराम से. सो दैट इज द केस. सो दैट इंसिडेंट विल लीड टू द अकेलेपन की बीमारी होती है, उसका नाम कुछ है, अगर किसी को पता है तो बता दो. ठीक है. तो वो वहां पे लेके जाएगी. सो दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग दिस थिंग्स. ओके. सो दैट इज द a good quality engineers are required to the society. So that is the main point. Okay. So let us go back to the main concern. Yes, we are here design. If due to the faulty design of the structure, faulty design of the bridge, it will lead to the major economic loss as well as life loss. So these are, ये मैं आपको पूछूंगा एग्जाम में, या अभी से लिख लीजिए, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ एग्जाम में. ठीक है. इसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे, इसके ऊपर एसक्यू आएंगे, इसके ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. जैसा भी आपका एग्जाम का पेपर स्टाइल होगा उसमें ये वाला क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा. ठीक है. सो दैट इज फॉर श्योर. अब आपको समझ में आया आप क्यों पढ़ रहे हैं ये ब्रिज वाला, है. तो दैट इज द केस. इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते, एक पाइपलाइन में भी छोटी सी भी गलती रह गई, फेल्यूर हो गई, तो उसके ऊपर जो चलने वाले है उसका डैमेज होगा, उसके नीचे चलने वाला है उसको भी डैमेज होगा, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ वो तो अलग, है ना. तो दैट इज द केस. नाउ लेट अस गो बैक टू द मेन. मैंने पीपीटी बंद कर दी है ना. मेन टॉपिक्स दैट इज ब्रिज. ओके. तब ये ब्रिज वाला टॉपिक जो है हम यहाँ पे पूरा कर देते हैं. ठीक है. अब आप आसानी से आप दूसरा स्ट्रक्चर भी कर लेते. दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर. ठीक है. सो दैट इज द ब्रिज. वन मोर पॉइंट इज our today's lecture will go to the 11:45. Okay. So after this Neha madam will take care of the next lecture. Okay. तो आज का जो ये लेक्चर, क्योंकि हमने स्टार्ट किया 10:45 पे, तो खत्म होगा 11:45 पे. 11:45 के बाद जो स्नेहा मैडम आपको लेक्चर ज्वाइन करना है. ठीक है. तो उसके बाद जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर्स. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. आई होप दैट यू आर, इज दिस स्क्रीन इज विजिबल? ओके, आई एम प्रेजेंटिंग. Okay, yes, it is visible to you. Yes, so temporary structures.
This is the special type of also a special type of construction. This is the during construction structures. Okay, temporary. अगर आपको पेंट करवाना है फिनिशिंग वर्क, तब आपको कुछ वो दीवार पेंट करने के लिए, मान लीजिए आपने 25 स्टोरी की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, अब उसको पेंट करना है सपोज बाहर से, तो अब आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए जो टेम्पररी होना चाहिए। पेंटिंग आपकी खत्म हो, आप स्ट्रक्चर वो हटा दीजिए, सो दैट इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर। तो आई एम देख लेते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर में क्या है। सो इन ब्रीफ, अब मैं जो है आपको यस इसमें थोड़ा आपको ब्रीफिंग में करूं। टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है आर द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट that are need to enable the permanent work is to be built. Okay, so usually the temporary name itself suggesting it is a temporary, so the temporary structures are removed after its use. आपका टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो है वो टेम्पररी वर्क्स जो है वो आप रिमूव कर देंगे आपका काम हो जाने के बाद। ठीक है, तो उसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, स्कैफोल्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैफोल्डिंग। दूसरा कौन सा है, सोरिंग, ये आपको लिख लेना है, स्कैफोल्डिंग, सोरिंग एंड अंडरपिनिंग, राइट। सो स्कैफोल्डिंग वाला जो पोर्शन है वो प्रतीक सर रहेंगे। ठीक है, सोरिंग एंड अंडरपिनिंग हम लेंगे। ठीक है, यानी कि कैश लेंगे, कैश पोर्शन। तो स्कैफोल्डिंग वाला पूरा जो है वो प्रतीक सर समझाएंगे, और बाकी के 2 जो है टेम्पोररी वर्क्स में वो सोरिंग और अंडरपिनिंग। हम देख लेते हैं सोरिंग क्या होता है, और आप जैसे मैं आपको इमेज दिखाऊंगा ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, तो ये मैं स्कैफोल्डिंग स्किप कर रहा हूँ। दिस इज द स्कैफोल्डिंग, आपने देखा होगा। ओके, आपको शीशे लगवाने हैं ब्रिज, है ना, विंडोज के, है ना, पेंटिंग करना है, एसी फिट करना है, तो इस तरह के आपको मेजोरिटी जो है स्कैफोल्डिंग चाहिए होते हैं। ये जो है प्रतीक सर सिखाएंगे आपको। ठीक है, अलग अलग टाइप के, ये देख लिया, आप देख सकते हैं पेंटिंग करना है तो आप इस तरह से स्कैफोल्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, क्या नाउ व्हाट इज द सोरिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इन केस ऑफ सोरिंग, सोरिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द टेम्पररी एंड अनसेफ स्ट्रक्चर। मान लीजिए आपका घर है, उसकी दीवार जो है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड हो गए, तो उसको आप क्या करेंगे, टेम्पररी उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टेम्पररी सपोर्ट को बोलेंगे सोरिंग, SHORING, सोरिंग। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूं तब आपको पता चलेगा। हमारे पास 3 टाइप के सोरिंग है। मैं आपको इमेज, ये जो स्केचेस है वो आपको एग्जाम में पूछूंगा। रैकिंग सोरिंग, ये आपको टेक्निकल वर्ड्स याद रखने हैं, बाकी सब आपको पता है। ठीक है, फ्लाइंग सोरिंग और डेड सोर्स। तो रैकिंग सोर क्या होता है, इस तरह से देखिए आप, ये आपको इमेज तो, ये स्केच तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये जो दीवार है ना, 3 मंजिला इमारत है ये, इसकी दीवार जो है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड हो गई है ना, थोड़ी सी क्या है कि झुक गई है आउटवर्ड साइड। तो हम क्या करेंगे, टेम्पररी स्ट्रक्चर लगाएंगे वहां पे। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर इसको मैं कॉपी करूं और आपको बोर्ड में लेके जाओ, बोर्ड कहाँ गया, ओके यहाँ पे। तो आप उस दीवार को, उस स्ट्रक्चर को आप टेम्पररी सपोर्ट देते हैं, उसको हम बोलते हैं सोरिंग। ठीक है, तो अब क्या है, आपको ये दिख रहा है कि अब क्या है कि आपके यहाँ पे ये दीवार है वो क्या है, पहले होनी चाहिए ऐसी सीधी स्ट्राइट। ठीक है, मैं आपको स्केल से बताता हूँ, होनी चाहिए ऐसी सीधी, लेकिन कुछ लोड इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस तरह से वो थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है ना। तो वो क्या करेगा कि वो स्ट्रक्चर को इस तरह से लेटरल फोर्स लगाएगा और आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, इंक्लाइन हो जाएगी ना। तब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पे जमीन में ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से सभी जगह इसको आपको
टेम्पररी सपोर्ट आप ऐसे प्रोवाइड करेंगे, राइट, है कि नहीं? थोड़ा इस तरह से हम कर देते हैं ताकि वो सीधा जो पोजीशन में वही रहे, ठीक है। तो दैट इज द केस। इसको हम धक्का लगाएंगे बाहर की तरफ से, तो શું થશે? तो क्या होगा, ये जो है उसी पोजीशन पे रह जाएगी, वो ज्यादा इस तरफ आएगी नहीं, झुकेगी नहीं। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सोरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दीवार है वो थोड़ी सी झुक गई थी, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक हमने बोर्ड लगाया, ठीक है, और यहाँ पे एक गड्ढा खोद के इस तरह सा स्ट्रक्चर बना के इस तरह से हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया सभी जगह, उसको हम बाइंड कर दिया यहाँ पे। सो ये आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है, फिगर आपको माइंड में आनी चाहिए। सो दिस इज द रैकिंग सोरिंग, RAKING, रैकिंग सोरिंग, ओके। बाकी जो है दिस इज द फ्लाइंग सोरिंग। मान लीजिए अब क्या है कि वो तो एक ही दीवार थी, है ना, वो झुक गई, ये एक ही साइड की दीवार झुकी थी, ठीक है। तब आपने क्या कर दिया, सिंपल उसको सपोर्ट दे दिया। अब मान लीजिए दोनों तरफ ऐसा हो, तो तब आप क्या करेंगे, फ्लाइंग सोर। फ्लाइंग मीन्स हवा में लटकता, है ना। तब आप क्या करेंगे, ये जो दीवार है, पहली दीवार, दूसरी दीवार, उसमें आप छेद करेंगे इस तरह से, दोनों दीवार में छेद करेंगे, है ना, और एक बीम इंसर्ट करेंगे, स्टील का बीम इंसर्ट करेंगे, आई सेक्शन लेटर से। और आई सेक्शन इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जिससे आपको ये सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पे आप वेल्डिंग कर सकते हो, ठीक है, स्टील का है तो, ठीक है, अदरवाइज आप वुडन का भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, अब आपने इसकी वर्टिकलिटी को एक पोजीशन दे दी, उसके बाद आप सिंपल सपोर्ट दे दीजिए अब बॉटम, ताकि ये जो लोड जो है वो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम ना हो, ठीक है, इस तरह से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लाइंग शोर। अब इसको भी मैं उसको आपको लेके जाता हूँ। तो आपको ड्रॉ कैसे करना है, सिंपल, आपको ये डायमेंशन याद नहीं रखने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ फिगर याद रखनी है, ठीक है। फिगर भी आप ड्रॉ करोगे तब भी आपको आसानी रहेगी। तो अब क्या है कि आपको मान लीजिए ड्रॉ ऐसे करना है, सिंपल, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपकी ये आपकी 90 डिग्री पे एक दीवार है, और दिस एक इस तरह से दीवार है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, छेद करेंगे दोनों दीवार में, और इस तरह से एक आई सेक्शन जो है इस तरह से आप ऐड करोगे, है ना, छेद करके। उसके बाद जो है यहाँ पे आप इस तरह से एक और यहाँ पे कुछ सपोर्टिव स्ट्रक्चर आप बना के, राइट, बॉटम भी आपको इस तरह से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना के आपको इस तरह से सपोर्ट देना है। दिस इज कॉल्ड द फ्लाई सोरिंग ना। उसके लिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट चाहिए होगा, और यहाँ पे बॉटम में भी एक सपोर्ट दे दीजिए छेद करके, ठीक है, राइट, ताकि ये ऊपर ना चला जाए, ठीक है। ये आपको इस तरह से बॉटम बनाना होगा और इस तरह से सपोर्ट दे दीजिए। तो दैट इज योर फ्लाई सोरिंग। समझ में आ रहा है इमेज? ओके, एनी डाउट इन दिस? तो इसको हम फ्लाई सोर्स बोलते हैं, ओके। अनदर थर्ड थिंग इज द डबल, यू कैन से द डबल फ्लाई सोर। हमने दो बीम्स लगा दी और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। आप सिंपल क्या कीजिए, मैं यहाँ पे एरिया मूव करता हूँ, एक छेद बनाया ऊपर, वहां पे आई सेक्शन ऐड किया, एक छेद बनाया नीचे, वहां पे भी आई सेक्शन ऐड किया, उसके बीच को हमने दोनों की डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ट्रस लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। फिर हमने यहाँ पे एक प्लैंक लगाया जो एक वर्टिकलिटी प्रोवाइड करेगा, और उस तरह से हमने सपोर्ट दिया। तो ये इमेज आपको याद रखनी है, सिंपल। सो दिस इज द डबल फ्लोरिंग, डबल फ्लाई शोर। पहले वाला जो था वो सिंगल फ्लाई शोर था, ये डबल फ्लाई शोर है। अब इसका डिस्क्रिप्शन याद नहीं रखना है, डेड स्टोर। तो डेड स्टोर में क्या होता है कि आपको ये नीचे वाला पोर्शन कंप्लीटली रिमूव करना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, एक बीम अंदर लगाए छेद करके, दोनों तरफ बाहर और अंदर से सपोर्ट दे दिया, और इसको रिमूव करके आप दूसरा ऐड कर दीजिए। दैट इज योर डेड स्टोरिंग। तो ये आपको इमेज याद रखनी है, ओके। सिंपल है कॉन्सेप्ट, सिंपल, ठीक है। ये आपको थियरी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इमेज याद रखनी है। एक और चीज क्या है कि अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग क्या है कि इसका नाम ही अंडर है, तो वो कहीं नीचे से जाएगा, है ना। पिनिंग क्या है, आप पिन करते हो, स्टेपलर की पिन करते हो। तो अंडरपिनिंग दैट मीन्स अंडर प्लस पिनिंग, दैट मीन्स यू आर पिन समथिंग एट द बॉटम,
बॉटम पे क्या होता है, फाउंडेशन। तो हम फाउंडेशन को रिपेयर करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने जब घर बनाया तब आपने अ, 2 फ्लोर का घर बनाया था, 2 मंजिला घर बनाया। फिर आपकी फैमिली स्ट्रेंथ बढ़ गई, आपको 3rd फ्लोर रिक्वायर होगा। तब आप क्या करेंगे, तो फाउंडेशन की साइज तो वही है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि उस फाउंडेशन को मॉडिफाई कीजिए, उसकी साइज बढ़ानी होगी और 1 फ्लोर ऊपर ले लीजिए। ठीक है, यह पुराने कंस्ट्रक्शन में होता है अंडरपिनिंग, नए वाले में मेजोरिटी होता नहीं है। So the term underpinning is applied to the construction of a temporary structure. You can say this is the temporary structure. The construction of a new foundation. आपको अगर नया फाउंडेशन बनाना है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, हाँ, बिल्डिंग को आपको तोड़ना नहीं है, उसको डिमोलिश नहीं करना है, उसको रिमूव नहीं करना है, उसके अलावा भी बिल्डिंग के नीचे आप एक फाउंडेशन बना सकते हैं। वो किसकी मदद से, अंडरपिनिंग की मदद से। मैं आपको जैसे इमेज दिखाऊंगा आपको तुरंत लाइट हो जाएगी, तुरंत आपको आइडिया आ जाएगी कि अंडरपिनिंग काम कैसे करता है। सो अंडरनीथ ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, अगर आपकी बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन की साइज बढ़ानी है, उसका फाउंडेशन कंप्लीटली रिमूव करके नया बनाना है, तब भी आप अंडरपिनिंग मदद से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी हो गई बात कि आपको अगर 5 मंजिला इमारत थी उसको आप 10 मंजिला इमारत बनाना चाहते हैं, तो फाउंडेशन की साइज बढ़ानी होगी। तो वो साइज बढ़ाने के लिए आप अंडरपिनिंग की टेक्निक यूज करेंगे। तो उसमें क्या है, 3 मेथड से। नंबर 1 पीट मेथड, पीट मतलब के गड्ढा खोदना। पाइल मेथड, दैट इज योर पाइल फाउंडेशन। एंड मिसचेलेनियस मेथड। ओके, तो हम मेजोरिटी यही 2 बात करेंगे, पीट मेथड और पाइल फाउंडेशन और पाइल मेथड। तब आप क्या कर सकते हैं, आपको इमेज में दिख रहा है कि आपका ये वॉल है। ठीक है, मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या जरूरत है, आपको एक जरूरत है कि ये मान लीजिए आपकी ये आपकी वॉल है। ठीक है, यहाँ पे वॉल है, उसके नीचे का ये फाउंडेशन है। हमने पहले डिजाइन बनाया था तो उतनी डेप्थ तो सफिशिएंट थी। अब हमें क्या है कि 1 फ्लोर ज्यादा लेना है ऊपर इस वॉल पे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सिंपल, हम जो फाउंडेशन वाला जितनी डेप्थ हमें प्लान और डिजाइन से पता चलेगा कितने डेप्थ तक जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नीडल बीम उस वॉल में एक छेद करके नीडल बीम लगाएंगे और दोनों ओर से ऊपर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे देंगे। ठीक है, तो लोड कमिंग फ्रॉम द अपर साइड वी विल डिस्ट्रीब्यूट, आधा इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ चला जाएगा, और हाइड्रोलिक जैक की मदद से उसको हम ऊपर रखेंगे ताकि जो ये गिर ना जाए वॉल। ठीक है, फिर हम खड्डा खोद देंगे नीचे और फाउंडेशन के नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे कंक्रीट फिलिंग करके हम फाउंडेशन की साइज बढ़ा लेंगे। ठीक है, सो दैट इज द मेथड ऑफ द पीट फाउंडेशन। यू कैन सी, सिंपल करना क्या है कि ऊपर से आता हुआ लोड जो है वो आपको डाइवर्ट करना है नीडल बीम के ऊपर। नीडल बीम जो है वो हाइड्रोलिक जैक के साथ जुड़ी हुई है, वो ऊपर के स्ट्रक्चर का लोड हाइड्रोलिक जैक ले लेगा और नीचे आप खड्डा खोद दीजिए, पीट मेथड, खड्डा खोद दीजिए और नीचे जो है फाउंडेशन फिट कर दीजिए अपना नया वाला, है ना, कंक्रीट अपने साइज के हिसाब से। सो दैट इज द मेथड, दिस इज द सेक्शन, दिस इज द प्लान। ठीक है, आपका अगर आपकी वॉल की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, तो अब लंबी, सपोज इट इज अ बाउंड्री वॉल और इट इज एक्सट्रीम एक्सट्रीम वॉल, यू कैन गो विद द लेंथ ऑल्सो। दूसरी जो मेथड है पाइल मेथड, हमने यहाँ पे क्या किया था कि हाइड्रोलिक्स जैक्स लगाए। एक और मेथड है, आप एग्जिस्टिंग वॉल के इस तरह से नीडल बीम ऐड करके, नीडल इज नथिंग बट आपकी एक बीम होती है, वो छेद करके बनाए जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, आप पाइल बना दीजिए 2। ठीक है, और पाइल बनाने के बाद उसके ऊपर आप निडल बीम बना दीजिए छेद करके। फिर ये जो छोटा नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके ऊपर लोड नहीं आएगा, क्योंकि लोड जो आता है, मैं आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो भी लोड आता है मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके जाता हूँ। क्यों क्यों हमारा ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, ये वाला इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि सारा लोड यहाँ से हमने डाइवर्ट कर दिया, आधा इस तरफ इस पाइल में और आधा इस पाइल में। और ये जो है
नीचे चला जाएगा। यहाँ पे हम और कुछ भी चीज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइल फाउंडेशन कर सकते हैं या फिर ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ये फाइल की साइज बढ़ा सकते हैं, ये फाउंडेशन की साइज बढ़ा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फाइल मेथड and cement grounding, chemical consolidation and freezing. This is not required for you. So this is it from the temporary structure of the construction sequence. Okay. आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ये पीपीटी में आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, आप भूल गए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप रुकिए, अदरवाइज आप अगले लेक्चर में जा सकते हैं। कोई डाउट है? ये मैंने थोड़ा ब्रीफ में आपको बताया है और आप जितना आपको चाहिए उतना ही बताया है, ठीक है। बाकी ये फाइल फाउंडेशन जो है इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। आपके डिप्लोमा लेवल के हिसाब से कितना आपको याद रखना है वो मैंने आपको सिखाया है। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ 2 मिनट के लिए। एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अनंत कुमार श्रीवास्तव, मीत हड़िया एंड उमेश कुमार, आप 3 लोग हैं। अनंत कुमार, एनी डाउट? मीत हड़िया, उमेश कुमार, कोई डाउट? नो सर, आप स्नेहा मैम के लिए लिंक जो भेजी है ना उसमें जुड़ना चाहते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं हम। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं क्लोज कर देता हूँ।